Hello India, I am Vithika and today we are at a very spiritual place. But before that, let me tell you that India is a country which is also called as World Master of Spirituality. India and Indian mythology has given birth to spirituality. India is a country which provides message of peace to all the neighboring countries. Madhya Pradesh is the heart of India due to its geographical location. One famous city of this state, Ujjain, is also known as Avantika, is the heart of Madhya Pradesh. Ujjain is also known as Temple City for numerous temples from different eras. The city of temples Ujjain is famous for its Mahakaleshwar temple, one of the 12 Jyotirlingas across the nation. Jyotirlinga is a devotional representation of the supreme god Lord Shiva, where Jyoti means radiance and Linga means image or sign of the Lord Shiva. Thus, Jyotirlinga means radiant sign of Lord Shiva. Lord Shiva in the Mahakaleshwar Jyotirlinga form is believed to be Swayambhu, deriving currents of power from within itself against other images and Jyotirlingas that are ritually established and invested with mantra Shakti. Ujjain is considered as the Greenwich of India, with its first meridian of longitude passing through it. The Mahakaleshwar temple is situated on the side of Salvation and Holy River Shipra. Every 12 years, the Simhast Fair, Kumbh Mela, takes place on the side ghats of River Shipra. Right now we are standing at the main entrance of the Siddh Ashram situated at Ramghat Narsinghat on the bank of river Shipra. Shakti Kendra Siddh Ashram was founded by Shaktipatacharya Mahamandleshwar Swami Dr. Nardanand in 1990. This ashram is famous for its Abhimantrit Parat Shivlinga. This Shivlinga is made of 2.5 tons of mercury, and mercury is a substance which symbolizes peace and stability. This ashram is dedicated to provide a peaceful natural environment for people from all walks of life to learn, experience and practice yogic meditation and lifestyle wellness disciplines to enrich spiritual development and maintain a healthy body and a peaceful mind. So let's go inside and witness how it feels being a part of such a spiritual place. Today we are here to witness a very special aarti of this Parat Shivlinga, which is known as Swarna Aarti. This Swarna Aarti is performed every morning, in which gold substance is offered to the Parat Shivlinga and the Shivlinga accepts and absorbs the gold completely. Gold
is believed and considered as the most valuable item for offering. It is believed that the gold offering gives salvation to the ancestors. It is also believed that if the gold is offered to the Parat Shivlinga, it gives salvation to the ancestors, and this leads to the attainment of virtue. The Parat Shivlinga accepts and observes the gold as holy offering, and people every morning offer gold to this Parat Shivlinga in this Swarna Arti. Every morning after the Swarnarti, a healthy breakfast is served to the devotees in the ashram. People from across the world enjoy the breakfast and love the taste of Malwa. So let's go inside and have a look at people enjoying their breakfast. Right now we are at the top floor of Siddhashram, where you can see behind people from across the world are practicing yoga asanas. Yoga is a group of physical, mental and spiritual practice which was originated in ancient India, which keeps our body mentally and physically fit. The ashram has a huge dome for meditation and concentration, where one can sit and chant any mantra and it brings back the sound energy 5,000 times. Our human body is made up of 5 elements: earth, fire, water, air and sky. Sky also means sound, and sound is the most important element in our body. The sound energy produced in this dome helps in recovering diseases like brain tumor, blood pressure, heart problems and many more, and also balances these 5 elements in our body. Keeping the healthy food habits in mind, Siddhashram serves a healthy and delicious lunch to the devotees in the ashram. Every year on the occasion of Narsingh Jayanti, an international event, Mahanad Yog, is organized at Siddhashram. So now we have with us Shaktipatacharya Mahamandleshwar Pithadipati Swami Dr. Nardananji Maharaj, founder of Siddhashram and establisher of Parat Shivlinga. Swamiji provides the education of Shaktipat to his devotees, which helps them attaining peace and fills human body with positive energy. This organization in Ujjain is the main center where he provides this education. Along with this, he travels to different countries to provide this education to his devotees. From April to November, he travels in different countries to meet his devotees, and from December to March, he stays at the main center at Ujjain. While he stays at the main center at Ujjain, there is a retreat organized where all his devotees from across the world come to be a part of it. So now let's talk to Dr. Swami Nardananji Maharaj and know what is this retreat and what is Shaktipat. Swami जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात एक अपने आप में बहुत ही अद्भुत अल्टीमेट विधा है कुंडलिनी शक्ति के जागने की। 2 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं शास्त्रों के अंदर। एक तो एफर्ट बेस्ड पाथ होता है और दूसरा है एफर्टलेस पाथ। एफर्ट बेस्ड में जितने भी योग हैं, जैसे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, हठ योग है, तंत्र योग है या मंत्र योग है,
या जितने भी और भी जो है धर्म में जहाँ जहाँ साधनाएं होती हैं, तो वो सारे के सारे जिसमें कोई भी किसी भी विधा का अवलंबन लिया जाए उसको एफर्ट बेस्ड पाथ कहते हैं। लेकिन भारतीय जो ऋषियों ने इतना गहन अध्यात्म क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहता है, थोड़ा सा समय, और एक ही जीवन में व्यक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करे, वो एफर्ट बेस्ड पाथ से उतना आसान नहीं। इसलिए जो है हमारे ऋषियों ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि दयालु थे ऋषि और सर्वभूत हिते रता, सारा जीवन जो है लोगों के हित के लिए, उनके मंगल के लिए, उनकी शुभकामनाओं के लिए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी उनके अंदर भावना थी। उस बात को लेकर के उन्होंने एक ऐसी अपने अंदर एक क्षमता डेवलप कर ली कि जिससे आदमी को बिगर एफर्ट के ही उसकी वो अंतर्मुखी हो जाए, और जो एक अपने अंदर जो आत्मशक्ति है या अपने अंदर देवात्म शक्ति है या अपने अंदर जो परमात्मा भाव है उसको उपलब्ध हो जाए। तो ये क्या ये इसको कहते हैं सिद्ध महायोगा। सिद्ध महायोगा मीन्स वो अपने आप में, अंग्रेजी में यदि कहेंगे तो सेल्फ कंप्लीटेड सिस्टम, अपने आप में कंप्लीट है और उसमें कोई प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शक्तिपात के जो आचार्य होते हैं उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो उनकी कृपा प्रसाद से कोई भी व्यक्ति उनके सानिध्य में जो बैठ कर भी साधना करेगा, जिसके ऊपर वो संकल्प कर देंगे, उस वो अंतर्मुखी हो जाएगा और अंतर्मुखी होकर के उसकी शक्ति जागृत हो जाएगी और जागृत होकर के अपने आप वो जो है उन्मुखी हो जाएगी। और जिससे क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो बहुत सारी जो विधाएं छुपी हुई है, जैसे चक्र हैं, नाड़ियाँ हैं, लोग वर्षों अभ्यास करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, तब जाकर के सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है, समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं। लेकिन गुरु कृपा से थोड़े ही समय में, यानी अल्प समय में, और सुषुम्ना नाड़ी स्टार्ट हो सकती है और चक्रों के भेदन हो सकते हैं। और चक्रों के अंदर जो रहस्य सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर है, सारा का सारा इन चक्रों के अंदर। और चूँकि हम लोगों को किसी को इस विषय में पता नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत गहरी अंदर की विधा है, और इस विधा के बगैर समझे, बगैर अनुभव हुए, बगैर जाने आदमी का जीवन परिपूर्ण नहीं हो पाता। आदमी के अंदर जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता, एक जीवन मुक्ति की जो जीवन मुक्ति का जो आनंद है उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो शक्तिपात के माध्यम से ये जीवन मुक्ति आदमी, जिसको लिविंग लिबरेशन, आदमी ऐसा महसूस करता है कि जैसे कि लिबरेट हो जाए, सारे भय जो है खत्म हो जाते हैं, अहंकार खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, और ईर्ष्या, जलसी, राग, द्वेष, ये जो अटैचमेंट, ये सब खत्म हो जाते हैं और आदमी का जीवन पूरा आनंद में। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसको घर छोड़ना पड़े या उसको ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे राजा जनक थे तो गुरु कृपा हुई उनके पर अष्टवक्र महाराज की, तो थोड़े से ही समय में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया और वो विदेह कहलाए, जीवन मुक्ति का उन्होंने अनुभव किया। ऐसे ही अर्जुन को भगवान कृष्ण ने उनकी कृपा से उसको
शुरू का जो दर्शन हुआ तो वो शक्तिपात ही था। और भी बहुत सारे स्वामी विवेकानंद जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो उन्होंने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने परमात्मा को ऐसा देखा जैसे मैं आपको देखा। तो उन्होंने कहा आप हमको अनुभव करवाइए। तो उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से शक्तिपात कर दिया और उनका तो एक विधा है जिस विधा में जो वर्षों जन्म जन्मांतर लग जाते हैं अभ्यास करने में, करते करते तब कहीं जाकर के वो व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। लेकिन शक्तिपात के माध्यम से ये काम बहुत ही थोड़े से समय में होता है। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ आए थे तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत समय साल वर्षों रहे हो यहाँ उज्जैन। सांदीपनि ऋषि थे, उसके आचार्य थे, तो उन्होंने थोड़े से टोटल 64 दिन भगवान कृष्ण रहे और इसी अवधि में उनको पूर्ण जो है विद्या 16 करोड़ पाल गए। ऐसे ही राम जी के बारे में कहा जाता है, राम जी जब गए वहाँ तो रामायण के अंदर है गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े से समय में कैसे वो विद्या प्राप्त होता है? वो शक्तिपात के माध्यम से जब शिष्य जो योग्य शिष्य जिसके अंदर सच्ची जिज्ञासा रहती है वो ऐसे महापुरुष के पास आनंद की भी अनुभूति होती है। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा और ज़्यादा जो है सानिध्य की ज़रूरत रहती है या उनको और ज़्यादा जो है प्रोग्रेस की आवश्यकता रहती है, तो फिर वो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ आकर के हम थोड़ा सीरियसली उनके साथ में इंटेंसिव रिट्रीट यहाँ चलती है, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अब जो है कई जगह हर देश में तो मैं पहुँच नहीं पाता हूँ, तो अब धीरे धीरे लोगों को अब इतना शक्तिपात का प्रचार प्रसार मतलब हो गया है तो लोग अब कहीं से भी आ जाते हैं लोग, तो उसके लिए यही सबसे उचित स्थान है। वैसे तो बहुत लोग जो है अब जैसे अमेरिका में रिट्रीट हो रही तो कुछ लोग जो है लैटिन अमेरिका से भी पहुंच जाते हैं, वहाँ मेक्सिको से पहुंच जाते हैं या अमेरिका से मेक्सिको पहुंच जाते हैं। तो फिर भी जो है वहाँ समय 2-3 दिन का ही मिल पाता है, लेकिन यहाँ चूँकि मैं 2 महीने रहता हूँ तो समय ज़्यादा मिल जाता है, उससे उनकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस बढ़ जाता है। इसलिए ये इनमें सब चलता है। और इसके अलावा ओम की ध्वनि भी चलती है जिससे उनके जो अंदर के जो बहुत सारे जो सेल्स हैं वो रिचार्ज हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य भी उनका बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ खाना भी हम बिल्कुल ऑर्गेनिक देते हैं, घर का गेहूँ, घर का तेल, घर का घी, गाय हैं या 15-20 गाय हैं, तो बहुत शुद्ध जो आहार दिया जाता है। तो बीमार भी हमारे नहीं पड़ते। यहाँ लोग बोलते हैं भारत में आने से डरते हैं, क्योंकि शुद्ध आहार, पानी भी शुद्ध, हर चीज़ शुद्ध, इसका ध्यान और साधना भी उनकी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतनी सारी जानकारी मिली आपसे और हमें जानने का मौका मिला कि किस तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और किस तरह से उनको शांति मिलती है यहाँ आके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। And this was our entire day we spent it over here, and we could experience a lot of peace, holiness and spirituality. It's a place where you can be calm, patient, peaceful. So this is a nice place to stay. You can come here, have your stay and experience such a beautiful atmosphere. And thank you so much for watching us and stay tuned with us. Thank you so much.